कहते जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमे ही नहीं। हाँ। आज दरियाई रावी पर एक नया शहर आबाद किया जा रहा है जो दरियाई रावी के इर्द गिर्द बनाया जाएगा और इसकी लागत 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा आएगी। हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 18वीं सदी ईस्वी में मुगलिया दौर का एक ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ थोड़ा थोड़ा उतना ਆ बनाया ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। में जेदे की लस्सी अगर आपने नाश्ते में नहीं पी तो आपने कुछ नहीं पिया। जहां लोगों का रश आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसकी दुकान पर जाने के लिए आपको मोटरसाइकिल या पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि ये अंदरून शहर की तंग गलियों में वाक़या है। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ कमेंट करके अपने विचार जरूर दियो। आइए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। रावी किनारे बसने वाला पाकिस्तान का खूबसूरत शहर जिसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है, ये पाकिस्तान के अमीर शहरों में आता है। ये ऐसा शहर है जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और आज ये शहर तरक्की की बुलंदियों पर है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं लाहौर शहर की और मैं भी इसी जो भी है जामा मस्जिद सेम इदा दी है ना नक्शा, में लगता इको ही है जिवें में रहता हूँ। लाहौर शहर की तारीख क्या है, कैसे इस शहर ने इतनी तरक्की की है, यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है, इस शहर के खूबसूरत और तारीखी मकामात कौन से हैं, ये शहर आगे ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੱਕਾ ਦੀ ਖਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਛਤਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। यूरोप बनने जा रहा है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं लाहौर शहर के तारीखी और खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, कदीम ज़माने में लाहौर के मुख्तलिफ नाम थे। लोहार, लावकोट, लोहनार और कुछ हिंदू रवायात के मुताबिक लवपुर भी कहा जाता था, लेकिन आज इसका नाम लाहौर है। लाहौर शहर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर को पाकिस्तान का सकाफती दिल भी समझा जाता है, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी 1 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा है और ये दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में आता है। लाहौर शहर का कुल रकबा 1772 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर में सबसे ज्यादा पंजाबी जुबान बोली जाती है। इसके अलावा ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਾਹੌਰੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। जुबान भी लोग बोलते हैं। लाहौर के लोगों को खुश मिजाज और खुश अहलाकी की वजह से जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान का दिल है। ये शहर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब वाक़या है, जिसका इस्लामाबाद से फासला 370 किलोमीटर, कराची से 1200 किलोमीटर, पिशावर से 518 किलोमीटर और कोयटा से 970 किलोमीटर के फासले पर है। लाहौर की आबादी में मुख्तलिफ नस्ली गिरोह शामिल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पंजाबी जो पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं। इसके अलावा पख्तून, सिंधी, बलोची, महाजर और दीगर कौमें भी आबाद हैं। अगर बात करें मज़हब की तो 95% मुसलमान हैं, जिनमें सुन्नी और शिया शामिल हैं। बाकी 5% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं, जिनमें मसीही, हिंदू और सिख शामिल हैं। और इन तमाम मज़ाहब को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी है। इसी वजह से इस शहर में आपको चर्चिस, गुरुद्वारे और यहाँ तक के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की तारीख की
तो जुबान आम ये बात है कि लाहौर का नाम हिंदू देवता राम के बेटे लोह से रखा गया है। अगर आप सर्च करेंगे तो हमेशा ये स्टोरी सामने आएगी, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कि लाहौर नाम की बहुत सी जगह दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें कैलिफोर्निया के एक इलाके का नाम लाहौर है, कनाडा में भी एक गांव का नाम लाहौर है, अफ्रीका में भी लाहौर नाम का इलाका मौजूद है। इन सब जगहों का ताल्लुक पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से बिल्कुल नहीं है। लाहौर शहर की तारीख 2000 साल कदीम है, जहां बुद्धमत और यूनानी रहा करते थे। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और इस इलाके में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। महमूद गजनवी ने इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और ये एक अहम शहर बन गया। 16वीं सदी में जब मुगलिया दौर शुरू हुआ तो मुगल बादशाह अकबर के दौर में लाहौर को एक अहम शहर की हैसियत हासिल हुई और यहाँ कई अजीम अमारात की तामीर की गई, जिसमें शाही किला और बादशाही मस्जिद शामिल है। इन कदीम इमारतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 18वीं सदी ईस्वी में मुगलिया दौर का एक ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਗੰਦਿਆ ਥੋੜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ हुआ और सिख सल्तनत के हुक्मरान रंजीत सिंह ने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अपनी ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਕਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। का दारुल हुकूमत बनाया। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ने बरसगीर पर कब्जा किया तो लाहौर को पंजाब का दारुल हुकूमत बना दिया और इस शहर को जदीद शहर में तब्दील कर दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर ने नई शनाख्त हासिल की। दोस्तों, इस शहर की अहमियत का आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर सल्तनत ने इस शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर ना सिर्फ तालीमी बल्कि सकाफती, इक्तसादी और सियासी अहमियत का भी हामिल है। एक तहकीक के मुताबिक ये शहर ऊंची पहाड़ी पर वाक़या था। इसी वजह से हड़प्पा में रहने वाले लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे, क्योंकि हड़प्पा में सैलाब आया था। लाहौर इन दरवाज़ों की तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और औरंगज़ेब के दौर में हुई थी। इन दरवाज़ों का मकसद लाहौर शहर को दफ़ाई लिहाज से मजबूत बनाना था, लेकिन आज लाहौर शहर चारों इतराफ़ में दूर तक फैल चुका है और पाकिस्तान के जदीद तरीन शहरों में आता है। ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन भी चलाई गई है, जो आज पाकिस्तान के किसी भी और शहर में मौजूद नहीं है। ये ट्रेन दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की ट्रेन के ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਓਰੀਐਂਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ? ਓਰੀਐਂਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟ ਟ੍ਰੇਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਆ। ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। की बनाई गई है, जो लाहौर शहर के बाटापुर के इलाके से चलती है और पूरे शहर के वस्त से गुजरते हुए ठोकर न्याज़बेग तक पहुंच जाती है, जिसका किराया सिर्फ 45 रुपए है। हजारों लोग रोजाना इस पर सफर करके अपने काम पर जाते हैं। ये लाहौर शहर का शानदार मंसूबा है। इसके अलावा लाहौर शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से दुनिया के बेशतर ममालिक की फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, लाहौर शहर को भी यूरोप बनाया जा रहा है। जी हाँ, इस शहर में भी यूरोप के तर्ज की ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे लोगों को सफर में मजीद आसानी होगी। ये ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਯਾਰ ਕਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ लाहौर की किनाल रोड पर चलाई जा रही है, जो जल्लो पार्क से ठोकर न्याज़बेग तक जाएगी। चलें अब आपको दिखाते हैं लाहौर शहर आज कैसा है, यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है और खूबसूरत मकामात कौन से हैं। लाहौर शहर खानों के लिहाज से भी पाकिस्तान का कैपिटल है। लाहौर शहर के खाने भी लाजवाब होते हैं। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां आपको लजीज और मज़ेदार रवायती खानों के रेस्टोरेंट मिलते हैं। इस पूरे इलाके को कदीम तर्ज से सजाया गया है।
आज टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ खाने के लिए आते हैं। अच्छा जी। लाहौर का ओल्ड टाउन, जिसे अंदरून शहर भी कहा जाता है, सुबह का आगाज मजेदार नाश्तों से किया जाता है, जिनमें पूरी हलवा, निहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। पूरी हलवा में जफर पूरी हलवा, सदीक पूरी ਉਹ हलवा ਲੱਸੀ ਦੇਖਣੀ, ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੇੜੇ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੇੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੋਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੱਖਣ ਮੁੱਖਣ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭੋਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ। साली गेट के नजदीक शहाब स्वीट सबसे ज्यादा फेमस है। अंदरून लाहौर में जेदे की लस्सी अगर आपने नाश्ते में नहीं पी तो आपने कुछ नहीं पिया। जहां लोगों का रश आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसकी दुकान पर जाने के लिए आपको मोटरसाइकिल या पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदरून शहर की तंग गलियों में वाक़या है। आज भी आपको कदीम ज़माने के घर नजर आएंगे। अंदरून शहर के करीब बादशाही मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद को 1673 में तामीर किया गया था। इसका डिजाइन दिल्ली की जामिया मस्जिद से मिलता जुलता है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 1 लाख के करीब नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਸੇਮ। बादशाही मस्जिद से बाहर आते ही आपको इलामा इकबाल का मज़ार देखने को मिलेगा, जहां लोग आकर सलाम पेश करते हैं। इस मस्जिद के बिल्कुल सामने शाही किले का गेट है, जिसे आलमगीरी गेट कहा जाता है। मस्जिद के साथ ही सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिसे रंजीत सिंह की समाधि भी कहते हैं। इस जगह बड़ी तादाद में सिख ज़ायरीन आते हैं। शाही किले की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग शीश महल पैलेस है, जहां शीशे का नक्शो नगार बहुत ज्यादा किया गया है। इस जगह रंजीत सिंह बैठकर लोगों को कोहे नूर का हीरा दिखाया करते थे। रात के वक्त शाही किले में एक ड्रामा शो भी मुनक्कद किया जाता है, जिसमें तारीख को याद करने के लिए मुगलिया दौर का एक्ट प्ले करते हैं। शाही किले के बाहर मीनार पाकिस्तान है। ये वही जगह है जहां 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करार ਬੜਾ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆਹੋ, ਨਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਵਰਗੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ। पेश की गई थी। अंदरून लाहौर में वजीरहान की मस्जिद भी मौजूद है, जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखती है, जिसे 17वीं सदी में मुगलिया दौर में तामीर किया गया था और आज भी ये मौजूद है। इसका आर्किटेक्चर भी अंदर से बहुत खूबसूरत है। लाहौर के 13 दरवाजे लगाए गए थे। ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਮੀਨਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਯਾਦਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੰਪਲ जिनमें दिल्ली गेट, लोहारी गेट, बाटी गेट, कश्मीरी गेट, मोची गेट, टकसाली गेट, मोरी गेट, रोशनाई गेट, शेरावाला गेट, मस्ती गेट, जक्की गेट, सारे यादगारी शाह गेट हैं। आलम गेट और अकबरी गेट शामिल हैं। इन दरवाज़ों के इर्द गिर्द आज बहुत से बाजार मौजूद हैं, जहां से पूरे पाकिस्तान में तजारत की जाती है, जिसमें शाह आलम मार्केट सबसे ज़्यादा फेमस है। अंदरून लाहौर के करीब अनारकली बाजार भी मुगलिया दौर का है, जो आज भी दुकानों से बड़ा हुआ है। इस बाजार में लोगों का रश हर वक्त रहता है। इस बाजार के बारे में ये बात फेमस है कि अकबर आजम की एक कनीज अनारकली थी, जिसे शहजादा सलीम से मोहब्बत की वजह से सख्त सजा दी गई और इसे दीवार में चुनवा दिया गया था। और ये वाकया इसी बाजार के करीब पेश आया था, जिसकी वजह से इस बाजार का नाम अनारकली रख दिया गया। इस बाजार में लाहौर की फेमस निहारी, वारस निहारी की दुकान भी मौजूद है, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। तो 92 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान अपनी पूरी टीम को यहाँ लाए थे, जिसकी वजह से ये लाहौर की फेमस निहारी बन गई थी। यहाँ से कुछ फासले पर लाहौर की माल रोड की सड़क है, जो सबसे ज्यादा फेमस रोड है। इस जगह मौजूद जीपीओ की बिल्डिंग अपने दौर में बरसगीर के तमाम जीपीओज की हेड ऑफिस हुआ करती थी। इसके अलावा इस रोड पर पंजाब असम्बली और गवर्नर हाउस भी मौजूद है। लाहौर में बहुत से बुजुर्गाने दिन के मज़ार भी मौजूद हैं, जिनमें अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, बीबी पाक दामन का मज़ार शामिल हैं। दोस्तों, लाहौर आज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। लाहौर का गुलबर्ग का एरिया एक पोश एरिया समझा जाता है। गुलबर्ग में मौजूद MM आलम रोड शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, जहां तमाम ब्रांड की दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से कैफ़े और रेस्टोरेंट भी इसी रोड पर हैं। शॉपिंग के लिए लाहौर शहर में पाकिस्तान के बड़े शॉपिंग ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ।
भी बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाते हैं एम्पोरियम मॉल, जो जोहो टाउन के इलाके में बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। इस मॉल का मालिक मियां मंशा हैं। दूसरा फेमस मॉल पैकेजेस मॉल है, जो साइज के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। इसे DHA में बनाया गया है। एक जमाने में यहाँ पेपर की फैक्ट्री हुआ करती थी। और तीसरा मॉल कुछ अरसा पहले तामीर किया गया है, जो DHA के फेज 6 में वाक़या है। इसका नाम डोलमैन मॉल है। इसका आर्किटेक्चर भी जदीद तर्ज का बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ से कुछ फासले पर DHA फेज 7 में डिफेंस राया का इलाका मौजूद है, जहाँ जाकर आपको लगेगा कि आप दुबई में घूम रहे हैं। शॉपिंग की दुकानें और रेस्टोरेंट यहाँ बनाए गए हैं। हफ्ते की शाम को यहाँ बहुत ज्यादा और शहर के वस्त से एक नहर गुजरती है, जिसे कनाल रोड कहा जाता है। दोस्तों, लाहौर का रेलवे स्टेशन भी बहुत कदीम है, जो आज भी अपनी तारीख पेश करता है। इस स्टेशन को 1862 में ब्रिटिश दौर में बनाया गया था और पहली ट्रेन लाहौर से अमृतसर तक चलाई गई थी। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद इसे ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਨਾ। किया गया था। पूरे मुल्क से आज मुसाफिर इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले वक्त में लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया है, जिसकी वजह से 5 घंटे का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। लाहौर में पंजाब के सबसे बेहतरीन अस्पताल भी मौजूद हैं। इसी वजह से पंजाब के दूसरे शहरों में अगर किसी मरीज को पेचीदा मसला हो जाए तो उसे ये जवाब दिया जाता है कि इसे लाहौर ले जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज दरियाई रावी पर एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जो दरियाई रावी के इर्द गिर्द बनाया जाएगा और इसकी लागत 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा आएगी, जहां एक नया लाहौर बसाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी लंबाई 46 किलोमीटर है। दोस्तों, एक जमाने में बसंत का त्यौहार इस शहर में जोशो खरोश से मनाया जाता था। मोची गेट में पतंग और डोर की दुकानों में रश होता था, लेकिन आज ये त्यौहार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। चलें अब आपको लाहौर के कुछ 80 साल पहले के मनाजर दिखाते हैं कि उस जमाने में लाहौर कैसा था। ये है 19वीं सदी का वजीर खान चौक। ये नासिर बाग लाहौर के मनाजर हैं। ये है लाहौर चबुर्जी की इमारत, जो उस दौर में इस तरह की नजर आती थी। ये तस्वीर 19वीं सदी के माल रोड की है और ये उस दौर के हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। उस दौर में लाहौर में आलूदगी का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन आज दरख्तों को खत्म करने से और गाड़ियों की आलूदगी से ये शहर फिजाई आलूदगी का शिकार हो चुका है। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵੀ ਪਰੇ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਚ ਘੁੰਮਣ ਡੇ ਆ। ਹਾਂ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਦੁਬਈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਈ ਚ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਕੰਮ ਉਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।